Hari Om, Namaste, very good afternoon everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So in the previous lectures we have started with the Domestic Violence Act of 2005 where we have covered two modules, that is what constitute a domestic violence under the Principal Act of 2005 and what was the need for the amendment of this Principal Act in 2022. So both the parts have been discussed in the previous videos. You can check out that. So for all those who hasn't subscribed our channel yet, you can subscribe our channel now. And if you like today's video or any other previous video, don't forget to hit like and share button. So in the previous lectures we have studied till section 3, like what constitute a domestic violence under the Domestic Violence Act. So today in part number 3rd, which is going to be the last part of Domestic Violence Act 2005, we are going to discuss the rest of the further act in section number 37. So let's proceed. The first thing, now if any kind of domestic violence has been committed against a victim means a woman in most of the parlances, by the hands of husband or husband's relative, including mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, brother-in-law, otherwise. So who are the authorities? Those are appointed for the protection of that victim. So first of all, we have under section 6, 7 and 8 a PO, that is a protection officer. Here PO means a protection officer, not a police officer. She is basically a women officer appointed by the state government concerned for the protection of that women under section number 8, right? What are her duties when she is being appointed in a state for a protection of victim is covered under section number 9, that we'll discuss in the later part. So next authority is a service provider. Now these service providers are appointed under section number 10 by again the state government. They are any kind of an NGO, that is a non-government organization, or any society registered under Societies Registration Act. Their main aim is to work for the redressal of the victims of domestic violence. So basically एक तरीके के NGOs या society होती है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त रखती है कि that in case of any kind of violence committed against a victim, they can provide her help and they can even lead her case in before the magistrate, right? The next authority who is appointed for the protection of victim is police officers. Against ये फर्स्ट टाइम हमारे ऑफिसर्स होते हैं, तो जब भी हमारे अगेंस्ट कोई भी क्राइम होता है तो हम किसको जाके रिपोर्ट सबसे पहले लिखाते हैं? अपने पुलिस ऑफिसर, यानी नियरेस्ट जो थाना कंसर्न होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं, उनको जाके हम अपनी बात बताते हैं, जो आगे हमारी मदद करते हैं, हमारी कंप्लेंट जो है लॉन्च करते हैं एंड आगे जो है वो ऑपरेशंस को अरेस्ट भी कर लेते हैं. फोर्थ अथॉरिटी इज देयर which is known as magistrate class 1. Now let me tell you one thing. Under this act, the magistrate has the power to give orders only for protection of victim concerned. Yani ki under 2005 act, the magistrate here will only give any order for the protection of the victim concerned. अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन जो है should be put behind bars, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उनको जेल भी हो, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर दिए जाएंगे जैसे कि उसको घर में वापस ले दिया जाए, उसको कंपनसेशन दी जाए, उसके नौकरी का इंतजाम हो, उसके मेडिकल के खर्चों, उसकी प्रोटेक्शन, इन चीजों से रिलेटेड जो ऑर्डर्स है यहाँ पे मजिस्ट्रेट पास करता है. बट अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को जेल भी हो, तब हम इस प्रिंसिपल एक्ट के साथ भारतीय न्याय संहिता को क्लब कर देते हैं, ठीक है, विच इज द न्यू आईपीसी. और आप सेक्शन नंबर 85 जो है 86 क्रुएलिटी जो है at the hands of husband and the relatives, जो previously 498A था, previous it was 498A of IPC, वो अब आपका 85 86 हो चुका है क्रुएलिटी अंदर BNS. तो आप जो है इस दोनों एक्ट को क्लब कीजिए और फिर मजिस्ट्रेट जो है उसके आगे फर्दर इम्प्रिजनमेंट यानी अरेस्ट के ऑर्डर्स पास करेगा. अदरवाइज यहाँ पे अरेस्ट होके ऑर्डर्स ही सिर्फ पास होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब भी होता है तो हमेशा दोनों एक्ट को क्लब किया जाता है वहां पे और दोनों एक्ट के तहत ही उसे सजा सुनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है. अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि कंप्लेनेंट कौन है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि कंप्लेनेंट कौन से पर्सन एक्सेप्ट द विमेन हर्सेल्फ, जो विक्टिम है उसके अलावा कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है बिफोर देम फॉर अ स्पीडी रिड्रेसल ऑफ देयर केस. तो आप इन दोनों चीजों को भी याद यहाँ पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है.
बात करेंगे ड्यूटीज की, राइट। सो हु विल बी अ कंप्लेनेंट, आप यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो है अगला अपना पॉइंट जो है उसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। कंप्लेनेंट, सबसे पहले तो विक्टिम खुद यानी विमेन, जिसके साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो जाके अपनी कंप्लेंट जो है इनके सामने रख सकती है। इवन बहुत सारे केसेस में सीधा मजिस्ट्रेट के पास ही ये लोग पेश हो जाते हैं या उनको चिट्ठी लिख देते हैं, जो आगे पुलिस कंसर्न ऑफिसर या पीओ को अपॉइंट भी कर लेते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर जो है कंप्लेनेंट कौन हो सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन। अब आगे ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन, एक तो वो खुद हो गई, अदरवाइज ऑन हर बिहाफ कौन हो सकते हैं, या तो पुलिस ऑफिसर या प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो भी हो सकते हैं। एनी फैमिली मेंबर, जो विक्टिम के फैमिली मेंबर है, फादर, ब्रदर, मदर या सिस्टर जो है, वो भी उनके बिहाफ पे आके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं दैट शी इज नॉट वेल, शी इज नॉट इन अ पोजीशन टू फाइल अ केस, तो हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो जो विक्टिम है उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है, शेयर्ड हाउस होल्ड फैमिली मेंबर, क्या होता है बहुत बड़ी कि कुछ ऐसे एक दो फैमिली मेंबर्स मिल जाते हैं, इफ हर लक परसिस्ट एट दैट टाइम, तो एक दो जिन्हें ऐसे होते हैं जो घर में बाकी लोगों को रोकते हैं कि ऐसा ना करो, इसके साथ ऐसा मत करो, बट उन्हें चुप करा दिया जाता है। पर आगे चल के जब उस वुमेन के साथ ऐसे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता है, तो वो एक अद्धा जो लौता, उनका एक लौता वहां पे फैमिली मेंबर होता है जो ऑलरेडी मना कर रहा होता है, वो भी आगे आ सकता है कि नहीं जी, मेरे घर में इस फलानी फीमेल मेंबर के साथ जो है ये मेरा, इसके साथ ये रिलेशनशिप है, इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, मेरे बार बार रोके जाने के बावजूद आप इसे बचा लीजिए, वो आके गुहार लगा सकता है। तो ही कैन और शी कैन ऑल्सो बी अ कंप्लेनेंट हियर। इसके अलावा विमेन इन लिव इन रिलेशनशिप, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कर सकती है, ठीक है। तो जो विमेन है इधर इन मैरिज और इन लिव इन रिलेशनशिप, वो कंप्लेनेंट हो सकती है। ऑन हर बिहाफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, any of her family member, any of her female family member, if she is in a shared household, any person who is not directly related for domestic violence act, on behalf of her, he or she can also file a complaint that she is being steadily being victimized of this domestic violence in my house, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेंगे, यहाँ पे ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट वाइज लिख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्लेनेंट कौन है यहाँ पे, ठीक है। अब हम दोबारा से ऊपर अथॉरिटीज पे चलेंगे, क्योंकि हमने एक सेक्शन अभी और छोड़ा है, और वो है ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सेक्शन नंबर है 9, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज कौन सी है, अब उसके सामने कोई विक्टिम आ गई है तो क्या जिम्मेदारी बनेगी। सबसे पहले रिलीफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट विक्टिम शुड बी हर फर्स्ट पैरामाउंट ड्यूटी। Number 2, to assist the magistrate in booking that oppressor and reaching the true value of the case to that point, जहां पे वो प्रॉपर तरीके से अपराधी को जो है दोषी घोषित करे, उसे सजा दिलाए और विक्टिम को न्याय दिलाए। मेकिंग अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच इज हर फर्स्ट ड्यूटी, अगेन उसे प्रॉपर एक रिपोर्ट अपनी रेडी करनी पड़ेगी कि मेरे पास कब कौन कहाँ आया, मैंने कैसे उस केस को कंसर्न किया, कैसे मैंने उस इंसान को पकड़ा, कैसे मैंने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, कहाँ तक केस पहुंचा है, ये सारी उसको एक डिटेल इंफॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। मेक एन एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट सीकिंग प्रोटेक्शन, तो विक्टिम आएगी तो सबसे पहले उसे मजिस्ट्रेट के सामने एक चिट्ठी लिख के न्याय की गुहार भी उसके बिहाफ से लगानी पड़ेगी। मेक अ लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, इसे मेक श्योर करना होगा कंटिन्यूअसली आफ्टर 1-2 months कि कौन से नए एनजीओ सोसाइटी आए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, कौन से सरकार ने जिनसे मान्यता प्राप्त है, कौन से चले गए हैं, इनका नाम डिलीशन एडिशन पे चलता रहेगा। अरेंजिंग अ सेफ शेल्टर फॉर विक्टिम, इस चीज का उसका पैरामाउंट ध्यान रखना होगा कि विमेन जो है वो रात में बेघर बेसहारा ना रहे, अगर उसके फैमिली मेंबर्स उसे नहीं एक्सेप्ट करे तो कहाँ पे वो आराम से रह सकती है जहां उसे प्रोटेक्शन मिले और नीड्स उसकी पूरी फुलफिल हो। गेटिंग हर मेडिकल एग्जामिनेशन डन वुड ऑल्सो बी द वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ दिस प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, राइट स्टूडेंट्स। अब केस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितने भी मैंने आपको
ड्यूटीज बोली आप इनको एज इट इज पेन डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है। अब बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिलीफ, ठीक है, राइट, प्रोसीजर फॉर रिलीफ। अब वो पहुंच गई है पीओ के पास, कंप्लेंट दायर हो चुकी हुई है, व्हाट इज द प्रोसीजर। सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो टू मजिस्ट्रेट जाती है, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट कि भाई ऐसा केस आया अंडर सेक्शन नंबर 12, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग जो है वो कितने दिन में होगी, विद इन 3 days ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट डे विद इन, फर्स्ट हियरिंग विद इन 3 days ऑफ एप्लीकेशन, पहली हियरिंग हो जाएगी। जिस दिन केस आया उसी दिन ही समन्स और जो है वारंट्स निकल जाते हैं, फिर उनका बुलावा लग जाता है और 3 दिन के अंदर अंदर पहली हियरिंग होना कंपलसरी हो जाता है। डिस्पोज ऑफ द केस, सो क्योंकि ये फैमिली रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो सरकार चाहती है जल्दी से जल्दी इन मसलों का जो निपटारा हो और जो वायलेंस से जो विमेन के साथ वायलेंस हुआ है उसको रोका जाए और जो विमेन है उसको न्याय दिया जाए, उसको ऑर्डर दिया जाए, उसको सेफ शेल्टर प्रोटेक्शन दी जाए। इसलिए डिस्पोज ऑफ का टाइम बहुत छोटी विंडो रखी है, विच इज 60 days फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग। पहली हियरिंग के अंदर 2 महीने के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को ऑर्डर्स पास करने होंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट विक्टिम, फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ दैट विक्टिम। कौन सा मजिस्ट्रेट यहाँ पे होगा, मजिस्ट्रेट होगा आपके पास क्लास 1, ठीक है। अब क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीएनएस जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसके नीचे अबॉलिश हो चुका है, तो क्लास 1 मजिस्ट्रेट के पास आप एप्लीकेशन लगाएंगे, जुरिस्डिक्शन इसके पास होगी फॉर पर्टिकुलर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्शन नंबर होगा 27 यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ हियरिंग इज सर्व्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर टू रिस्पोंडेंट, सर्विस ऑफ नोटिस टू रिस्पोंडेंट, ठीक है। वो हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को जब एप्लीकेशन लगा दी जाएगी 3 दिन में आपकी पहली हियरिंग होनी है, तो सबसे पहले नोटिस सर्व अपॉन अंडर सेक्शन 13 उन लोगों को कर दिया जाएगा। ये आपके सेक्शन है, टर्न बाय टर्न प्रोसेस चल रहा है कि भाई हाजिरी लगा लो, आपको कल या परसों के अंदर आना और अपना पक्ष जो है वहां पे रख देना है। नेक्स्ट चीज आगे बढ़ेंगे, जितनी भी प्रोसीडिंग डोमेस्टिक वायलेंस की कंडक्ट होती है वो इन कैमरा ही कंडक्ट की जाती है अंडर सेक्शन नंबर 60। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। प्रोसीडिंग इन कैमरा यानी ओपन कोर्ट में नहीं होगी ये चीज, ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जितनी है वो सारी होती है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन से ऑर्डर्स मजिस्ट्रेट पास करते हैं, ऑर्डर्स पास्ड बाय मजिस्ट्रेट। बाकी उसके पास 60 दिन है, उसने दोनों की बातें पूरी सुननी है, पूरी विटनेसेस की गवाही लेनी है, मेडिकल रिपोर्ट कंसिडर की जाएगी, पीओ की बात भी सुनी जाएगी यहाँ पे। तो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे हेल्ड होंगे जो केस के जरूरी होते हैं। जितने भी ऑर्डर्स वो मजिस्ट्रेट पास करेगा इट विल बी इनफोर्सिएबल थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। अंडर सेक्शन नंबर 27 वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो है वो थ्रू आउट इंडिया जो है आपके इनफोर्सिएबल होंगे। सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उसकी सेफ्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन नंबर 18 रेजिडेंस ऑर्डर्स, अगर उसको घर से निकाल दिया गया तो रेजिडेंस जो है शेल्टर ऑर्डर्स भी सबसे पहले पास होते हैं। सेक्शन नंबर 19 की वापस उसे घर में लो, उसको तंग नहीं करना जब तक प्रोसीडिंग डिसाइड नहीं होगा, उसको कोई हार्म नहीं करना। अदरवाइज अगर उसके पेरेंट्स है तो उनके पास भी भेज सकते हैं इफ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, अदरवाइज कहीं और सेफ शेल्टर जो है उसकी जो है व्यवस्था कर दी जाती है। मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ, ठीक है, ये 20 नंबर सेक्शन है। इन केस अगर उसकी नौकरी छुड़वा दी गई थी पहले तो इस चीज के ऊपर खासा ध्यान होगा, किसी तरीके से उसके पैसों की जिम्मेदारी जो है वो उसको फुलफिल करे और सामने वाली रिस्पोंडेंट पार्टी कह सकता है इसको मंथली जो है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाए, मेडिकल रिलीफ दी जाए। इंटरम कस्टडी ऑर्डर्स, इंटरम कस्टडी ऑर्डर्स,
अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों की जवाबदारी किसके पास रहेगी, क्या वो फादर उसकी फैमिली के साथ रहेंगे या मदर के साथ रहेंगे। तो ये 21 के तहत जो है यहाँ पे ये 20 है, ये 21 है, इसके तहत जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स पास कर सकते हैं कि मदर या उसकी फैमिली के साथ रहे। कंपनसेशन ऑर्डर्स, अगर उसका बेचारी का बहुत नुकसान हुआ, उसे मारा पीटा है, उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई है, अब उसकी हालत उस तरीके से नहीं है, सो डैमेजेस फॉर टॉर्चर, कंपनसेशन भी उसको दी जाएगी। ये तो इंटरम हो गया, मॉनिटरी लीव, कंपनसेशन भी अलग से उस लेडी को मिलेगी। अगर उसे जेल, इम्प्रिजनमेंट या सिविल क्रिमिनल कोर्ट के तहत लीगल प्रोसीडिंग्स, इसके लिए भी मजिस्ट्रेट कह सकते हैं कि भी हम लीगल प्रोसीडिंग अंडर 26 सेक्शन इनिशिएट कराते हैं, तो वो बीएनएस के सेक्शन 85, 86 में आपकी जो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपील। तो हम वीडियो के एंड तक पहुंच रहे हैं बिल्कुल ही। तो यहाँ पे अब ये ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, इसके सेक्शन नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको एज इट इज पेन डाउन कीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यूजुअली मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से हम सेशन कोर्ट में अपील लगाते हैं। सो इफ एनीबॉडी इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन पास्ड बाय मजिस्ट्रेट, अपील कहां जाती है, अपील टू सेशंस कोर्ट होती है हमारी, सेशंस कोर्ट। सेक्शन नंबर है 29 और विंडो टू फाइल अ केस अपील बिफोर सेशंस कोर्ट वुड बी 30 days, 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय मजिस्ट्रेट। 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील दायर कर सकते हैं टू दी सेशन कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अगेन इम्प्रिजनमेंट चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन बता दिए हैं। अगर इम्प्रिजनमेंट मांगते हो तो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन और कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने सारे कवर कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं चेकआउट किया, उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो या प्रीवियस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको सारी वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट एक्ट नहीं है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, आई विल सी यू नेक्स्ट।